Vijay Verma and welcome to the stage, the director Vibhu Puri and producers Manish Malhotra and Dinesh Malhotra. जिसे एक जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों जिसके भी हाथ में yes जिसके हाथ में कैमरा होने नहीं बोल सकता we are very happy to be having a special screening of Gustave here at the 56th AV. Congratulations एक बार आप सब बहुत शुक्रिया आप इधर आने के लिए. Sir, to begin with you, how does it feel to be here at Team Goa? Quite happy, very happy. It's like a full circle for me. I started at the institute and my student films have featured in Panorama. So the last time I came to AFI was with a film of mine, and today I've come back again with a film of mine. Lots of nostalgia, lots of that whole feeling coming back again into your heart because you're always a film student. However big or small. Fantastic, Manish sir. Last year we celebrated together your first ever OTT release, and now this is Manish Malhotra's first ever theatrical release. How nervous or excited are you? Well, I'm not nervous. I would say I'm anxious because I think it's so important that the audience comes to theatres, support cinema like that, which is intimate, beautiful, lovely actors, very well written, directed, produced, all of it. मेरे लिए अभी इफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट ईयर में था ये साल हूँ. So I was wondering next year कौन सी फिल्म के साथ but it's feelings I don't know why I'm feeling very comfortable maybe because I was here last year and it just feeling like home. Fantastic. Vijay bhai, first of all तो पहली थिएटर रिलीज सोलो एज अ रोमांटिक हीरो, क्या ये सपने जैसा लगता है मेरे भाई? क्योंकि आपकी बिल्ड हम सबको बहुत पर्सनल लगती है. It does feel like a dream come true. It does. In fact, I have a small story to share with you. This is back in 2005 to 2008. I was a student at the film school in Pune, and I used to come here as a student. FTI की स्कूल बस, कॉलेज बस में, खटारा बस में हम लोग सब भर के आते थे यहाँ पर. डॉम में 50 रुपये पर नाइट में रुकते थे सारे, और यहाँ पर आके दिन में 3 से 4 फिल्में मिलती हैं. और यहाँ से सिनेमा सीखना, यहीं से सिनेमा की समझ आई थी, और आज मेरी फिल्म यहाँ पर प्रीमियर हो रही है. कम लाइक फुल सर्कल फॉर मी. कम हियर एज अ स्टूडेंट, नाउ आई कम हियर एज एन एक्टर और एज अ लीड एक्टर ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म. Fantastic. Fatima, how are you feeling here? I'm very happy and excited क्योंकि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं भी आऊँ, but मुझे कभी मौका मिला नहीं. And this is my first time here, and I am coming with our film, and it couldn't have been a better journey for me. So I'm just very happy. अभी तो इंशाल्लाह होगा. क्या बात है. एक तो पहले फातिमा कितनी खूबसूरत, आपको देखिए सच में ऐसा लग रहा है कि हम कोई शायरी बोल ही दे, जैसे ट्रेलर में इतनी शायरी बोली जा रही है. मैं सर मेरी शायरी तो मैं विजय भाई से सीखूंगा. आपको एक शायरी बोलनी चाहिए. क्यों, क्या कहते हैं दोस्तों? या एक शायरी हो जाए फातिमा के लिए. अर्ज किया है. इरशाद. मेरा लहजा कैक्टस सा फुटोरा, मेरा लहजा कैक्टस सा फुटोरा, तेरी बातें रात रानी की है. अब कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी. क्या बात है भाई, वाह भाई वाह. फातिमा, while shooting your film, was there any scene that made you realize ये एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म नहीं है? ऐसा कोई सीन था या कोई याद? किसी भी तरीके से ये टिपिकल रोमांटिक फिल्म है. ये सारे सीन्स वैसे ही हैं क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की और लड़के के बीच में जो आशिकी होती है सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बट पोएट्री, गजल, एक दुनिया है पूरी. नसीर जी, he's in the film and his relationship with him of a teacher and a student, that's very special. So I wish Nasir ji was here because all of us are really missing him. He's the heart of our film. So yeah. Fantastic. अच्छा, इधर भी एक बार जरा माइक देके विभू सर से पूछते हैं, क्योंकि विभू सर मैं पर्सनली गवाह हूँ. मनीष मल्होत्रा का जब फैशन शो होता है ना, तो करियर की स्टार्टिंग में हमने बड़े जुगाड़ किए थे इनके शो देखने के लिए. अब चलो हम आते हैं, जब भी हम देखते हैं इनका शो तो आई हैव सीन हिम, कितनी डिटेलिंग होती है इनके शो में, इनके सेट में, इनके हर एक गारमेंट में. तो मुझे लग रहा है आप पे कितना प्रेशर इन्होंने दिया है अबाउट द डिटेलिंग एंड द परफेक्शनिस्ट दैट ही इज. एक्चुअली बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिया होगा. बट डू यू एग्री विद व्हाट आई से? आपको परफेक्शनिस्ट है ना? कंप्लीटली एग्री. वो भी है. तो नाम ले जोड़ी. बट ये बहुत ही बड़े परफेक्शनिस्ट है, ये कुछ नहीं छोड़ते. ये भी वही मैं कह रहा हूँ, बढ़िया जोड़ी बनी है.
So tell me one qissa so when you think that I think always he just told me one thing, that go out and make the film that you want to make. Don't compromise on anything, and I'm standing right behind you. For everything good or bad that you do on the film, I'm there with you unconditionally. जी। उसके बाद ही आप इस तरीके की एक लीड ले सकते हैं जब एक ऐसे प्रोड्यूसर आपके साथ खड़े हों जहाँ पे आप एक यूनिक अलग कहानी कहना चाहते हैं इस दौर में, जहाँ हमारे लिए सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसका उसके लिमिटेशंस बहुत कम किस्म की फिल्में बनती हैं. So just trying to increase the envelope of that mainstream cinema, so as to say, and you need somebody like Manish to empower genuine new voices. टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे भी हैं, दिनेश सर. कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत कास्ट, एक तो बहुत ही टैलेंटेड सेल्फ मेड सुपरस्टार हमारे साथ हैं, खड़े हैं आपकी इस ब्यूटीफुल खूबसूरत सी पिक्चर में. कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल. और आप लेकर आइए अगले साल इनको फिर से. बचपन से मैं ब्रदर्स से फिल्म बनाएंगे. So he wanted to be a producer since my childhood and his childhood. And then when I started designing for films, तो इससे तक मैं डिजाइनिंग बहुत होगी, फिल्म कब बनाएंगे, फिल्म कब बनाएंगे. तो मैं डिजाइनिंग नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा रहेगा. So actually it's his dream come true. And I think his entire that's how Stage Fright started. फैंटास्टिक. अच्छा आपने तो अच्छा मैंने ये कहा है, हम ये पहले बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि इंसान जो है वो गुस्ताखियों का पुतला है. आपने रियल लाइफ में ऐसी कैसी कौन सी गुस्ताखी की है जिससे आप सीखे हैं और आपने उसको इम्प्रूव किया? पर्सनली तो नहीं की, जितनी प्रोफेशनली की. बहुत सीखा हूँ गलतियों से, मोर देन गुस्ताखियों से. एंड आई थिंक या एक्चुअली तो मनीष मल्होत्रा ने इश्क में कोई गुस्ताखी? इश्क हुआ तो सिनेमा से और अपने काम से. आई थिंक इसलिए. ओहो क्या बात है, क्या बात है. तो इधर जरा माइक करते हैं. तो फातिमा, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर की कोई गुस्ताखी जो आप जिससे आप रिलेट कर पाई रियल लाइफ में? मम्मी ना जो कैरेक्टर है बहुत ही अच्छी, सुरीली, शांत, सुलझी हुई लगती है. मैं बिल्कुल भी नहीं मैं बिल्कुल इधर उधर रहती रहती हूँ. तो बट इट्स वेरी नाइस टू प्ले अ कैरेक्टर जो इतनी सॉर्टेड है और वॉल्स अप है, काफी गार्डेड है, एंड यू नो समबडी कम्स इन अ लाइफ व्हिच इज दिस बॉय पपन एंड ब्रेक्स हर होल वर्ल्ड अपार्ट एंड जस्ट शोज लव. फैंटास्टिक. तो विजय भाई, अच्छी कला के साथ साथ अच्छे अभिनय के साथ साथ आपका इश्क भी सुर्खियों में रहता है. तो रियल लाइफ में इश्क में कौन सी गुस्ताखी की और आप सीखे उससे? वो जो पहला जो इश्क हुआ था स्कूल में, टीचर के ऊपर मेरे का क्रश हो गया था. वहां से गुस्ताखियां चल रही हैं जी, चलती रहेगी. फैंटास्टिक. अच्छा गोवा जब हम आते हैं, जी सर आप ऐड करो. गोवा जब हम आते हैं हम सबकी वाइब चेंज हो जाती है. यहाँ पे गोवा के मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं. गोवा की ऐसी कोई मेमोरी दैट यू कैन चेरिश, या कोई फेवरेट फूड आइटम या कोई फेवरेट जगह जो आप बार बार जाना चाहते हो? मैंने पूरा गोवा चप्पा छाल मारा है भाई. मैं सब करता हूँ गोवा के बारे में. मैं स्कूटी लेके इतना घुमा हूँ यहाँ पर इतने सालों से, तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ. इस प्रेस कॉन के बाद में मिलना मुझसे. आइटिनरी फ्रॉम विजय वर्मा. प्रॉपर गूगल मैप के साथ सारी लिस्ट बनी. क्या बात है. फातिमा, एनी फेवरेट डेस्टिनेशन, एनी फेवरेट फूड आइटम? मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट फ्रेंड्स का जो ग्रुप था बाहर जाने का वो गोवा में था. सो होता है ना बचपन में सोचते हैं बाहर जाएंगे, ये करेंगे, बाइक चलाएंगे, वो सब किया मैंने. वो दिन और आज का दिन है. आई ऑलवेज ट्राई टू कम हियर बिकॉज यहाँ पे मैं बाइक आराम से चला सकती हूँ. क्या बात है. अच्छा एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे ट्रेलर में लगी मनीष सर, वो ये है कि द कलर एंड टोन लाइक जो हम देख पा रहे हैं ना, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा एक फ्रेम लग रहा है. वाज देयर एनी कॉन्शियस कॉल ऑन दैट और कॉन्शियस डिसीजन कि उस तरह का टोन रखना? Nothing. Vibhu had set up, you know, he had set up a world of this very बहुत टेक्सचर है विभू के काम में और उनकी सोच में भी. एंड आई थिंक मानुष जो डीओपी है फिल्म के, उन्होंने बहुत समझा है उस टोन को एंड बहुत खूबसूरती से फिल्म को शूट किया. एंड आई थिंक दैट फॉर मी इट वाज वेरी, आई थिंक विभू मेरी एक बात थी कि विभू को ये था कि फातिमा के कपड़े एज करें. मैं कहता फातिमा के कपड़े एज नहीं करेंगे, वो कपड़े बहुत खूबसूरत, उसको एज ऑल्सो इज ब्यूटीफुल बट like make them more vintage. But I said नहीं, इसको more fresh तरीके से और करने. I think it's all creative people coming together and for me it's such a learning. Having produced this film on our own, two of us, and it's been a great learning for hopefully many more.
Fantastic. Last question. One thing that you both learned from Naseeruddin Shah as an actor, like you were saying that you would like to just be the same frame as him. सब कुछ एक सेंटेंस में पूरा नहीं होगा. उनकी प्रेजेंस ही बहुत ही एम्पावरिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी नसीर जी होंगे तो हम सोचते हैं कि डांटेंगे या कुछ बोल देंगे, और हम अपने जहन में इतनी सारी कहानियाँ बना देते हैं कि वो मुझे जज करेंगे. पता नहीं मेरी एक्टिंग मुझे आती नहीं है, आई कम ऑन द फर्स्ट डे एंड थिंक दैट आई एम द वर्स्ट एक्टर इन द वर्ल्ड. बट एक्चुअली ही इज सो लविंग एंड वार्म. वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी दैट ही हैज. Vijay bhai, anything special about Naseer Shah that you want to say? So, our audience go. I mean, I've been worshipping him for years now. Everybody knows this. उनसे मैं जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि मैं उनके बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता हूँ. मैं टैलेंट के मामले में उनसे बहुत दूर हूँ. वो जितनी मेहनत करते हैं, आज भी जितना काम करते हैं, उनकी भाषाओं पे जितनी पकड़ है, जितना वो सिनेमा को, जितना लिटरेचर को समझते हैं, जितना पोइट्री को समझते हैं, जितना लाइफ को समझते हैं, उससे बहुत दूर हूँ मैं. ये मेरी समझ में है. Fantastic. बस आखिरी सर एक तो कॉम्प्लीमेंट है डायरेक्टर साहब के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे यू नो समटाइम्स दे जस्ट लीव इट ऑर्गेनिकली, कुछ प्रिपरेशन भी करते हैं. इस तरह की टेक्निक होती है. वाज देयर एनीथिंग स्पेशल और इट वाज यू लेफ्ट इट एंड यू वेंट विद द फ्लो? हमारा आइस ब्रेक हुआ. बेसिकली मैं इसको मिलने गई थी वैनिटी में ऑन द डे ऑफ शूट. ये खा रहा था और इसने मुझे ऑफर किया कि कुछ खाएगी. मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भूख नहीं लगी. मैं खा के आई हूँ, मैंने बोला. इसने बेचारे ने अपना पहला निवाला लिया ही नहीं कि मैं इसकी प्लेट से खाने लगी और इससे प्लेट ली. तो जब आप प्लेट शेयर करने लगते हो ना खाना, तो ऑलरेडी आपसे मतलब वो प्यार हो जाता है. क्या बात है. दोस्ती बहुत बढ़िया होता है. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग. एक बार जोरदार तालियां सबके लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर प्लीज. मनीष सर, दिनेश सर, विभू जी, विजय भाई, फातिमा, and we have with us Mr. Tarun Taveta ji, GMNFDC with us. So please, thank you for getting the script to us. ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिनेमा लवर्स के लिए. सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स वी हैव, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली एंड वेल ऑर्गेनाइज फेस्टिवल, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ फिल्म मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कम हियर. सो उस हिसाब से ये फेस्टिवल सच में, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कि इस तरह का त्यौहार है, तो यहाँ पर फिल्मों का त्यौहार मनाते हैं. मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं जब तक स्टूडेंट आता था और वो 8 या 9 दिन जब फेस्टिवल होता था, मैं शुरुआत का पहला दिन के पहले शो से लेके आखिरी दिन के अवार्ड सेरेमनी तक मैं जुड़ा रहता था. और वो एक अपना बस्ता लेके और जेब में कुछ रुपए होते थे तो थोड़ा खाते थे, थोड़ा पीते थे और फिल्में देखते थे बस. विजय जी, ये डिजिटल और मोबाइल के ज़माने में बिना मोबाइल का एरा का जो अपनी स्टोरी किया है, वो आपको दोनों ने कैसा फील किया? हमको लगा कि हम वापस 1998 में चले गए हैं और हम जिस दुनिया से आ रहे हैं उससे काफ़ी दूसरी दुनिया में चले गए हैं. क्योंकि पहली बार दिल्ली गया था मैं सर्दियों में, पहली बार पंजाब जाना हुआ सर्दियों में, तो वहाँ की सर्दियाँ देखी, उस माहौल में उस तरह के सेट्स, उस तरह के कॉस्ट्यूम में अपने आप को देखा. तो एक मुझे तो वही फीलिंग आ रही थी, प्रिंटिंग प्रेस, फ़ोटो एल्बम कि आप फ़ोटो खींचते हो, वो जाती है 2 दिन बाद में प्रिंट होके आती है, तब तक आपको पता नहीं है फिर फ़ोटो अच्छी आई भी है या नहीं आई है. तो वो जो पेशेंस थी, एक सुकून था, एक इत्मीनान था, एक इंतज़ार में भी एक खुशी थी, वो दौर में हम वापस गए हैं इस फिल्म के जरिए और लोगों को लेके जाना चाहते हैं. आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आज बहुत दुखद खबर हुई है, धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, तो क्या कंडोलेंस देना चाहेंगे आप? We've lost one of the pillars of Indian cinema, and it's unfortunate that his passing is, as much we knew that he was going through a lot, but it still hurts a lot to see him go away. और ये एक तरह का हम सब के लिए लॉस है. फातिमा जी, आपके नहीं, हमें जान के बहुत
दुख महसूस हुआ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड। हम इनफैक्ट यही बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे हमारी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, बट all of us feel the pain of losing somebody that we've really looked up to as actors and even people of cinema. So it's a very sad. प्रतिमा जी